आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਉਹ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। 2 ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਗੰਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟੋ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੋ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਰਾਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜੇ ਕਨੀ ਸਾਰੇ ਭਕਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਰੇਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਹ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਆ। ਸਾਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ 30 ਝਾਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਮੀ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਫਸਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੂ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾतें ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਨੇ, ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ? ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੱਟਾ ਢੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। जो मन की बात प्रधानमंत्री जी ने बताई है, ऐसे हम उसके बातों से नहीं सहमत हुए। हम जो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा हमारे को तब सहमत होएंगे। इस तरह मन की बात रेडियो पे अनाउंस करके इसमें हम सहमत नहीं हैं। आगे पर उन्होंने अपने चोन मैनिफेस्टो में जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट उसके मुताबिक जिन्स देने के लिए कहा था, बिल्कुल झूठ बोला उससे। मन की बात रेडियो पे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो किसानों के मसले हैं वो बिल्कुल सिर्फ बातों ही उसमें हो रही हैं। ज़मीनी लेवल पर कुछ नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली हमको कुछ नहीं मिल रहा। पंजाब में मेन तौर पे खेती पर ही सब कुछ आधारित है। अगर खेती ऐसे नीचे बैठ गई तो बिल्कुल सब कुछ रुक जाएगा। इसलिए हमारी तो यही बेनती है कि कुछ भी जो करना है वो करके दिखाया जाए। रेडियो पे 10-20 मिनट बोलने से कुछ नहीं होगा। हमने मोदी जी का भाषण सुना है, भाषण से बात नहीं चलेगी, सब अच्छा नहीं होएगा। सब अच्छा तो तब होएगा जब कोई काम करेंगे। काम तो हो नहीं रहा, प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं हो रहा। जो आज मन की बात सुनी है जो मोदी जी की, वो अपने भाषण में सब कुछ बोल गए, लेकिन उन्होंने अपनी मन की बात तो बोल दी, लेकिन हमारे किसानों की मन की बात में क्या है? हम तो मरे पड़े हैं, हमारा बहुत बुरा हाल है इस टाइम। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और सुनते हैं उन्होंने की कहना है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात ऐसा लग रहा था एक जरिया है धन पशुओं का। जो धन्ना सेठ हैं, पूंजीपति हैं, वो किसानों से कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के जरिए कि अब आपकी जमीन का अधिग्रहण
एकड़ों में नहीं किलोमीटरों में होगा। अगर प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति संवेदनशील हैं तो उनको 2013 के कानून को सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, ना कि कमजोर करना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो धन्ना सेठ हैं, जो धन पशु हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये जो सारा मसौदा बुना गया है, जो अध्यादेश लाया गया था, उसके ऊपर किसान हित का अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। पर ये अमली जामा चलने वाला नहीं है। किसान बहुत समझदार है और प्रधानमंत्री जी का जो ये धन्ना सेठों की हमायत है वो उसका पर्दाफाश कर देगा। दिल्ली ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। प्रधानमंत्री जी के मन में हो सकता है किसानों के प्रति प्रेम हो, लेकिन किसानों की ज़मीन को लेने का एक बिल जो कानून बन रहा है वो अध्यादेश के ज़रिए लाया जा रहा है। तो वो चोर दरवाजे से क्यों लाया जा रहा है? संशय तो यहाँ से पैदा हुआ ना। ऐसा भी कुछ नहीं था कि देश की कोई बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना अटक गई हो जिसकी वजह से देश का अचानक नुकसान हो गया हो। ओवरनाइट कोई अध्यादेश लाके अगर किसानों की ज़मीन लेने का कानून बनाया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं तो कुछ इमरजेंसी लग रही है, कहीं तो कुछ लोगों के हित टकरा रहे हैं। वहाँ हमने सवाल खड़ा किया था, उसी वक्त खड़ा किया था। दूसरी बात यह है कि बतौर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मैं ये भी समझना चाहूँगा कि दिल्ली में भी कई हज़ार किसान हैं, करीब 19-20 हज़ार एकड़ ज़मीन पे खेती होती है। उन किसानों के ऊपर हमेशा अधिग्रहण की तलवार लटकी रहती है। उन किसानों को कुछ नहीं मिलता। उन किसानों को मुआवजा नहीं, उन्हें ज़मीन चाहिए। वो अपनी ज़मीन का विकास खुद करना जानते हैं, वो अपनी ज़मीन से सब्ज़ी पैदा करना जानते हैं। तो किसानों को खेती करने दो, खेती को भी सम्मानजनक सौदा मानो, खेती को भी मानो कि अगर खेती कहीं अच्छी हो रही है तो उससे भी विकास हो रहा है। तो ये जो विकास की परिभाषा है इसको थोड़ा सा बदलें, तब किसान के मन की बात होगी। वरना तो ये तो जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और प्रॉपर्टी डीलिंग में भी मैं गली वाले प्रॉपर्टी डीलिंग की बात नहीं कर रहा, इस देश के क्रॉनिक कैपिटलिस्ट जो इस देश की ज़मीनों पे नज़र लगा के बैठे हुए हैं और उनसे बड़ी प्रॉपर्टी के धंधे करना चाहते हैं, ये तो फिर कानून उनके मदद के लिए हो जाते हैं। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैंने देखा है कि करीब करीब सभी राज्यों से वर्तमान जो भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा है उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। और मैं हैरान हूँ कि कैसे कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। अच्छा हुआ आपने छोटे छोटे सवाल मुझे पूछे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सत्य आप तक पहुँचाऊँ। आप जानते हैं भूमि अधिग्रहण का कानून 120 साल पहले आया था। देश आज़ाद होने के बाद भी 60-65 साल वही कानून चला। और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बनकर के आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया, और किसानों का जब होना था हुआ। सब लोग मानते थे कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। हम भी मानते थे, हम विपक्ष में थे, हम भी मानते थे। 2013 में बहुत आनंद फानन के साथ ये नया कानून लाया गया। हमने भी उस समय कंधे से कंधा मिला कर के साथ दिया। किसान का भला होता है तो साथ कौन नहीं देगा, हमने भी दिया। लेकिन कानून लागू होने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। हमें लगा कि शायद इससे तो हम किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें किसान के साथ धोखा करने का अधिकार नहीं है। अगर हम अध्यादेश न लाते तो किसान की तो जमीन वो पुराने वाले कानून से जाती रहती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। जब ये कानून बना तब भी सरकार में बैठे लोगों में कईयों ने इसका विरोधी स्वर निकाला था। स्वयं जो कानून बनाने वाले लोग थे, जब कानून का रूप बना तो उन्होंने तो बड़े नाराज होकर के कहा दिया कि ये कानून न किसानों की भलाई के लिए है, न गांव की भलाई के लिए है, न देश की भलाई के लिए है। दूसरी बात है, ये जो कानून में सुधार हम कर रहे हैं, कमियां दूर कर रहे हैं, किसान की भलाई के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी राज्य को ये नहीं मानना है तो स्वतंत्र है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो सरासर किसान विरोध के भ्रम है, किसान को गरीब रखने के षड्यंत्र का ही हिस्सा है।
देश को आगे न ले जाने के जो षड्यंत्र चले हैं उसी का हिस्सा है। उससे बचना है, देश को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है। जम्मू कश्मीर के कठुआ ते सांबा विच होए 2 अतवादी हमलियां दी मुख मंत्री मुफ्ती मुहम्मद सैयद ने निंदा की है। हमलियां दी निंदा करते हुए मुफ्ती मुहम्मद सैयद ने कहा है कि अतवादी हमले पिछे पाकिस्तान दे नाल शांति वार्ता भंग करने की साजिश रची जा रही है। ये जो हमला हुआ, ये मैं कहता हूं कि इस पर पूरी निंदा कंडेम करना चाहिए। हाउस की तरफ से एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन आना चाहिए और ये कहना चाहिए कौन सी ताकतें हैं, ये कौन सी फोर्सेस हैं जो इस यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस इलेक्शन में एक मैंडेट दिया, एक ताकत दी, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आगे चले। ये साजिश है जम्मू कश्मीर में जो अमन कायम होने वाला है, जैसे 2002 से 2006 तक अमन कायम हुआ था, कोई बोले नहीं हुआ था, ऐसा ही अमन का माहौल जम्मू कश्मीर में होने वाला है। जम्मू कश्मीर के कठुआ ते सांबा विच लगातार होए 2 अतवादी हमलों के बाद जिथे प्रशासन और सुरक्षा के सख्त प्रबंधों के नाल अलर्ट जारी कर दिता है, उत्थे ही इन्हां हमलों ते विरोधी धिर ने भी प्रतिक्रम दिता है। जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट है। इसमें एक तो ये चीज़ है कि एक हमें बातचीत करनी है और बातचीत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरी बात जो ये जर्नल लोग बाकी चिल्लाते रहते हैं मिलिटेंट कहाँ से आ गए। जब कश्मीर में मिलिटेंट आते हैं कहते हैं हमारा टेरेन जो है, पहाड़ियाँ जो हैं वो तो वल्नरेबल है, किसी भी जगह से मिलिटेंट आ सकते हैं। यहाँ तो प्लेन एरिया में से मिलिटेंट आते कहाँ से हैं? पहले ये देखा जाए कि बीएसएफ और फौज में मत कुछ लोग मिले हुए हैं, किसी और के साथ काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलता। एक मिनिस्टर कहता है कि ये सिक्योरिटी लैब्स है, दूसरा कहता है आर्मी की गलती है, तीसरा कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर है, चौथा कहता है ये डिस्टेबलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट है, पार से हो रही है। पहले इनको तय करना चाहिए कि रीजन क्या है। 5 बयान 5 गवर्नमेंट से 5 बयान आ गए, पता नहीं कौन क्या कहता है। पहले खामी के लिए भी ये मैं समझूंगा कि ये सिक्योरिटी लैब्स है और दूसरी खामी के लिए भी सिक्योरिटी लैब्स है। ये सिक्योरिटी लैब्स न होता तो ये रोज रोज का ये जो होना है, इससे साफ जाहिर लगता है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ बहुत लापरवाही से देख रही है कि हमारे यहाँ ये आतंकवादी का जो ये सिलसिला जारी है, तो ये इसी के कारण है। नौजवान इनकलाबी सभा बरनाला ने शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस ਨੂੰ समर्पित बरनाला ਦੇ ਵਿੱਚ इनकलाबी समागम करवाया। इस मौके जिथे शहीद भगत सिंह ਨੂੰ श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उत्थे ही उन्हां दी जिंदगी ਅਤੇ फलसफे ते भी चर्चा हुई। इस समागम ਦੇ ਵਿੱਚ नौजवान लेखकां, बुद्धिजीवियों ਤੇ जमहूरी जथेबंदियों के आगुआं समेत वड्डी गिनती आम लोगों ने शमूलियत की। समागम दौरान बुलारियां ने शहीद भगत सिंह के सुपनिਆਂ ਦਾ समाज सिरजण ਲਈ नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इन्ने सालों बाद भी देश के लोग उत्थे ही खड़े ने। आगुआ ने कहा है कि लोग अजे भी आज़ाद नहीं हो सके। भ्रिष्ट लोकतंत्र अते नशे ने लोगों को अपनी गिरफ्त विच लिया हुआ है। साडा प्रोग्राम नौजवान इनकलाब सभा का संगठन इस करके किया गया कि शहीदों की कुर्बानी बारे नौजवान पीढ़ी को जागृत भी किया जाए ते समाज में इनकलाब लिया जाए। शहीद भगत सिंह की शहादत को याद करने लिए दिहाड़ा मनाया जा रहा है। मैनू खुशी है कि नौजवान जिहड़े हैगे एक सही राह ते पैण दा ते शहीद भगत सिंह के सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करने का संकल्प रह रहे हैं। नौजवान इस पासे वाल सही दिशा वाल तुरे हुए ने ते असीं आस करते हैं कि इस तरह होर कल्ले इस वार्ड दे नहीं, समुचे शहर दे जां समुचे पंजाब दे जिहड़े नौजवान है वो इस पासे वाल तुर के प्राण करनगे। बरनाला शहर का सेखा रोड जो कि नगर कौंसल चोणां तो कुछ ही समा पहला बनिया सी पर हुण टुटना शुरू हो गया है, जिस कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पै रहा है। स्थानक निवासियों ने दस्सिया है कि वो इस खस्ता हालत सड़क का संताप पिछले लंबे समय तो हंडा रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि काफ़ी थावां तो टुट चुकी इस सड़क के कारण स्कूली बच्चों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। लोगों ने मांग की है कि जल्द तो जल्द सुचज ढंग के नाल सड़क का निर्माण करवाया जाए। इस संबंधी नगर कौंसल बरनाला के अधिकारियों ने दस्सिया कि संबंधित अधिकारियों को हदायतां कीतियां जा चुकियां ने अते सेखा रोड पर प्रीमिक्स पवा के जल्द तो जल्द सड़क निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा।
ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੰਮ ਨੇਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆ ਸੜਕ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਤੇ ਲੁੱਕ ਲੱਕ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜਦਾ ਟਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕਥੌਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਕਥੌਨ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੈਰੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 31 बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पीजीआई की तरफ से और मैं पीजीआई के को बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। हेल्दी सिटीज़, हेल्दी कम्युनिटीज़ किसी भी बेस्ट क्लिनिकल सिस्टम से भी क्रिएट नहीं की जा सकती। उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है और ये जो मैसेज है ये लाउड एंड क्लियर है। चंडीगढ़ एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है और यहाँ की जनता बहुत ही एक्टिव है। मैं ये चाहूँगा कि ये जो मैसेज है ये स्प्रेड हो नुक्स एंड कॉर्नर्स में। हेल्दी सिटीज़, हेल्दी कम्युनिटीज़ हमने क्रिएट करनी है, उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਨਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। हाँ, ये कैंडल मार्च हम सेक्टर 19 के महागिरजाघर येसु राजा गिरजाघर से सेक्टर 18 होते हुए यहाँ पर आए हैं। खासकर हम चाहते हैं कि प्रभु की रोशनी, प्रभु की प्यार अंधकार को दूर करे। प्रभु की रोशनी, प्रभु की प्यार, प्रभु की एकता वो भेदभाव को दूर करे। प्रभु की रोशनी, प्रभु की प्यार, प्रभु की क्षमा सबके हृदय में आए कि सब में ये अखंडता, ये एक दूसरे के प्रति दुश्मनी या किसी को तिरस्कृत मानना, किसी को बुरा मानना और किसी से बुरा करना, ये हमारे हृदय से, दिल से निकल जाए। नहीं, चंडीगढ़ में हमने आज किया है। 17 तारीख कलकत्ता में हुआ, बहुत बड़े स्थल से, बहुत बड़ा, कलकत्ता में, दिल्ली में हुआ कुछ दिन पहले, बम्बई में हुआ। हर जगह में हम काउंट नहीं कर रहे हैं, आप पेपर पढ़िए, न्यूज़ कॉलम खोलिए, हर जगह में कैंडल मार्च हो रहा है, लेकिन साथ साथ प्रार्थना भी हो रहा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਈ ਕੈਮਲ ਸਫਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਮਲ ਸਫਾਰੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਲ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਠ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਟੇਸ਼ਵਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ BSF ਦੀਆਂ 13 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। BSF ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਇਸ ਸਫਾਰੀ ਦੀ ਮੀਤ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ BSF ਦੇ DIG MF ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਚੇਂਦਰੀ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।